Hello, friends. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. I am Ronak Bhargav back again with the day 2 of vocabulary as we have started an initiative with collaboration with yours Mehboob classes. My name is Ronak Bhargav, co-founder of bhargavadda.com, and if you want the PDF of the Hindu vocabulary, so you can follow me on my blogs bhargavadda.com, or you can just search the name in Google, so you will get my blogs there, and you will also get a Telegram channel where I used to provide quality words with the where you will also get the synonyms, and you will also get to know the uses of different words. So quality words are there approximate. I used to cover 5 to 6 articles from the Hindu, and I used to provide the explanation of each and every difficult word which I think which is important for you, which is important for a beginner who is not good at English language, who is a beginner who don't know the actual use of vocabulary. So someone who is new to vocabulary, who don't have a strong command of a vocabulary, so it is very easy for him, and I make the things very simple for them. So please follow my blog so that you can get the PDF daily. I used to upload it, and you get it approx 11 around 11 to 12 noon. Okay, so in between I used to publish it because it's a meticulous task, and I have to cover all the articles around 70 to 80 words daily. I used to make for you people. So follow our blogs, and don't forget to subscribe our YouTube channel yours Mehboob classes. Here daily I will publish the daily vocabulary which I collect from daily news headlines and daily journals, which I think it is important for you if you are a beginner, or if you want to enhance your knowledge for newspaper reading, or if you want to learn something new. You have to read the newspaper. If you are going for some such exams where essay writing is there, descriptive is important, so there you have to, you need the knowledge, you need something creative in your mind. So when you will read newspaper, from there you can grab lots of ideas of the editor, what they want to say, what the author want to say, because different issues are there which are going on. For example, recently there is a protest by the farmers for the farm bill. Okay, so they are not agreeing to the proposals of the government. They want to repeal all the three laws. So different specialists are there. What they are doing, they are giving their opinion that what should be done, what is beneficial, why the farmers are so much why they are so much apprehended, that why they think that it is not good for them. So each and everything, different opinions are different by different experts. So you can also use that knowledge in your essay writing or in your exams where you are going for subjective exams. So basically vocabulary is very important for you. If you will learn some good words, if you have some quality words in your mind, so you can easily use them in your day-to-day conversation. You can use them when you are writing something, so that it will be very creative and it will be very impressive for the evaluator who is going to evaluate your answer sheets. Let's start the session. So my name is Ronak Bhargav, and I am a founder of Bhargav Adda, and recently I have collaborated with yours Mehboob classes, and you will get my vocabulary session here only from time to time. This vocabulary is helpful for competitive exams, and after the session I will also discuss some important words which are asked in SSC and banking exams in previous years. Let's start the session. The very first word is indigenous. तो पहला वर्ड है इंडिजीनियस. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव. अंडे खाते हो ना, एग बोलते हो, एडजेक्टिव. So what basically adjective means? Adjectives, it describes a noun or a pronoun, means it will always comes before a noun or a pronoun. So adjectives are basically describing word. For example, if I say I am a good boy, तो good का मतलब होता है अच्छा. तो good क्या है? Adjective है. तो indigenous क्या होता है? जो चीज स्वदेशी, something that is grown in your native country is known as indigenous. We used to say indigenous product of India. So you have to remember what's the meaning of indigenous, something that is homegrown or home produced. So we used to use the word indigenous for that. So I think the word is clear to you people. What's the synonym? Native, original. अब ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं भारत में, तो कौन सा खरीदिए आप? इंडिजीनियस प्रोडक्ट खरीदिए. तो अब ओरिजिनल, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. अब ओरिजिनल, इट्स अ निमोनिक्स फॉर द वर्ड अब ओरिजिनल. सो इफ इंडिया यू विल गेट अब ओरिजिनल प्रोडक्ट भारत में मिलते हैं, तो आप क्या कीजिए? इंडिजीनियस प्रोडक्ट आप खरीदिए. समथिंग दैट इज डोमेस्टिक, समथिंग दैट इज होम ग्रोन. सो इन दिस वे यू कैन लर्न ऑल दिस वर्ड्स. ओके,
see the uses the indigenous product of India. Now why this word is important? Because it is in headline. You can see South Asia first indigenous robotic surgery system launched in Delhi. लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज का उद्घाटन करना या किसी चीज का पहला प्रदर्शन करना, उसे हम लॉन्च कहते हैं, इनोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो दबा के इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि हम ऐसे और बेहतरीन सेशन आप सबके लिए लेकर समय समय पर आते रहें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक बार और यूज हुआ है, पीएम टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 1 लाख लैंड पेपर टू इंडिजिनियस पीपल इन पोल बाउंड असम। तो असम में क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या देंगे मोदी जी, 1 लाख लैंड पेपर देंगे। इन्होंने हाल ही में जो है ना आवास योजना के लिए एक अच्छी खासी जो है फंडिंग इन्होंने जारी की है। तो आप देख सकते हो इंडिजिनियस पीपल, जो होम मतलब जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो हमारे भारत के स्वदेशी लोग हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। जब हमने चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया था तब ये काफी बार वर्ड जो है चर्चा न्यूज में रहा था। तो आपको ध्यान में रखना कौन सा वर्ड सुर्खियों पे है, वैसे वर्ड काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, वेटरन। आज मुझे फिर ये वर्ड जो है न्यूज़पेपर में देखने को मिला। तो वेटरन हम किसे बोलते हैं? वेटरन इज समवन हु इज अ पर्सन हु हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो जो लोग अनुभवी होते हैं, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब MS धोनी और सुरेश रैना ने जब रिटायरमेंट लिया था तो वर्ड यूज हुआ था वेटरन। तो जैसे कोई भी अनुभवी कोई भी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई अभिनेत्री हो, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है वेटरन, जो बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं। तो लॉन्ग सर्विंग, सीजन्ड, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट एंड पास्ट मास्टर, ऑल दिस वर्ड पास्ट मास्टर यू कैन यूज फॉर a veteran, so it's a synonymous word. The new players have provided tough competition to the veterans in the field. So you know the meaning of veterans, so now it is clear for you people. Let's move to the next word. Don't forget to subscribe our YouTube channel if you want to stay updated with us. Daily I will bring quality words, approximate 25 to 30 words with uses and how you can make the appropriate use of word. Okay, just knowing the meaning and just cramming it is not important for you if you are going some good if you are in this cutthroat competition, if you want to achieve a good job, if you want to face the tough competition, so you have to prepare everything properly. Just cramming is not going to work for you. Let's move to the next word. The next word is felicitate. So again I have got a word felicitate. So what's the meaning of felicitate? Felicitate basically means to congratulate someone, or you when you जब आप किसी को याद करते हो, when you commemorate someone, तो अभिनंदन करना किसी का, तो you see the synonymous word commemorate, welcome or compliment someone. So all these are synonymous word which are used for felicitate. One word is there, facilitate. Facilitate means this word is made from facility, so it is facilitate. That means to make something easy, कि चीज को सुगम बनाना, सरल बनाना, तो वो है facilitate। ये है felicitate। मतलब जब आप किसी को याद करते हो, किसी का अभिनंदन करते हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, तो तब ये वर्ड यूज होता है, इट्स अ वर्ब। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फेलिसिटेटेड। मतलब जब आपको किसी को तारीफ करनी हो तो आप उसके लिए कैसे यूज करोगे? फेलिसिटेट। अब ये वर्ड जो है न्यूज में क्यों था, तो देखिए एक वर्ड और जान लेते हैं, क्योंकि 4 वर्ड थे एक ही आर्टिकल से, तो वहां से मैंने वर्ड उठाया है वैलेडिक्टरी। तो कोई विदाई से जुड़ा क्या देना, कोई स्पीच देना। तो व्हेन यू गिव अ फेयरवेल स्पीच और व्हेन यू गिव अ फेयरवेल एड्रेस, सो यू यूज द वर्ड वैलेडिक्टरी। बेसिकली इट्स अ नाउन। तो विदाई का वचन देना, स्पीच, address, lecture, farewell, all these are synonymous word which you can use for valedictory, a valedictory speech. So now see, another word is helm. What's the meaning of helm? Basically helm is a noun. Helm means something when you have a control over a particular thing. Okay, when you have a control, or when you are the leader, and when you are controlling something, for example an organization or a team or a committee, so when you are leading something, so the helm word is used. He was just 24 when he took the helm of the family business, means when he took the responsibility, or when he took the control of the family business. So in this way you can use this word. Now I have discussed 4 different words: veteran, felicitate, and valedictory, and helm. So where this word were used? This were used in the, recently about Subhash Chandra Bose. So PM Modi will visit Bengal on Parakram Divas to felicitate INS, means Indian National Congress veterans. So veteran, you know about Subhash Chandra Bose. So veteran means अनुभवी, मैंने आपको बता दिया। felicitate मतलब किसी को याद करना, किसी को अभिनंदन करना। So I have also discussed a word valedictory address. So you see यहाँ पे विदाई का क्या देंगे, यहाँ पे स्पीच देंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो इस तरीके से आपको वर्ड पता है तो आप आराम से किसी भी चीज को समझ सकते हैं। आपके लिए चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और मोदी जी ने और भी कुछ कहा था कि ये एक क्या बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे। ठीक है, एंड द टीम विल बी हेल्ड बाय PM मोदी, मींस ही विल बी कंट्रोलिंग द टीम टू
The word is used here. Let me show you where the word is here. Let me, I have to search it. Wait, the word was here. Yeah, a 85-member high-level committee helmed by PM Modi has been framed by the center to plan year-round program to mark Netaji birth anniversary. So help means, I have told you already, to control, to organize something. So it is used, is helped. Okay, so you can see how the word is used in the newspaper. Let's move to the next word. The next word is impasse. What's the meaning of impasse? Basically गतिरोध करना. तो कहां पर गतिरोध हो रहा है? सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं. तो impasse between the central government and the peasant. Peasant is a word used for the villagers or for the farmers. Deadlock, stalemate, stand stop, hand still, halt, and catch 22 situation. When something is a catch 22, when there is no further progress, and a situation is something when there is no progress, or it is impossible to move somewhere or to come to an agreement. So there this word impasse is used. So how the current political impasse, you can use the word in this way. Let's move to the next word. The next word is adamant. So when you use the word adamant, basically it's an adjective, मतलब ये किसी की विशेषता बताता है. तो जो लोग बहुत अटल रहते हैं, मतलब चेंज नहीं लाते, बहुत ही ज्यादा दृढ़ रहते हैं, determined रहते हैं, उसे हम कहते हैं adamant. So someone who is adamant means he is refusing to persuade to change his mind. Okay, so someone who never changes thoughts, never changes mind, never changes attitude, or never changes decision, whatever they take, they think that this is right, so they are adamant. So जब आप अपने विचारों पे अटल रहते हो, means steadfast, stubborn, जो लोग जिद्दी होते हैं, unrelenting and determined. So all these are synonymous word which is used for adamant. And adamant refusal. तो देखिए वर्ड ये यूज कहां पर हुआ. तो देखिए आपके सामने, मैंने कल जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्नैपशॉट आपके सामने लगा दूंगा. तो देखिए ये 20 जनवरी की न्यूज है. गवर्नमेंट फार्मर लीडर्स मीटिंग फेल्स टू एंड इम्पास एज बोथ द साइड एडमेंट. मतलब दोनों ही मानने को तैयार नहीं है, दोनों ही अपने जो है विचारों पे अटल है. इम्पास का मतलब गतिरोध की. देयर इज नो फर्दर एग्रीमेंट. जब कोई भी चीज जो है ना इस तरह गतिरोध में फंसी हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? इम्पास, डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल. तो इस तरीके के वर्ड आप यूज कर सकते हो. तो उम्मीद है आपको ये हेडलाइन समझ आ चुकी होगी. ओके, एक वर्ड यहां पे यूज हुआ इर्क. इर्क का मतलब होता है गुस्सा होना. क्या होना? गुस्सा होना. जब आप जो किसी भी चीज से जो है ना आपको खिज हो जाए, खिज चढ़ जाए ना, तो उसके लिए ये वर्ड मैंने यहाँ पे, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूं. तो उसका मतलब होता है क्या करना? खिज जाना. तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये करना. तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यूज हुआ हुआ. एक मिनट में ये थोड़ा सा रफ करके आपको बता देता हूं, तो जिससे आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. देखिए सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट. एससी इर्क्ड ओवर एस्पर्शन कास्ट बाय फार्मर यूनियन ऑन मेंबर्स ऑफ पैनल. तो एस्पर्शन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पे कलंक लगाते हो या किसी पे दोष लगाते हो, तो एस्पर्शन. तो आप किसी पे कलंक लगा रहे हो, तो इसको आप ऐसे याद करते हो, भैया ऐसे पर्सन, एस्पर्शन, ऐसे पर्सन. ऐसे पर्सन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इन पे क्या लगा है? कलंक लगा है, या इन पे क्या है? दोष लगा है. तो एस्पर्शन समझ आ गया. तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गुस्सा हुआ? क्योंकि उन्होंने, फार्मर्स ने क्या किया है? कलंक लगाया या दोष लगाया. किन पे? जो मेंबर, पैनल के मेंबर थे, जो कमेटी बनाई गई थी इनको वो करने के लिए, मतलब कि इनकी बातचीत का जो भी चल रहा है, ठीक है. तो ये पता नहीं कब तक चलेगा, तो उम्मीद है जल्दी हो जाए, नहीं तो भारत का काफी नुकसान हो रहा है. चलिए अगला वर्ड है आपके सामने पोलराइज. सो व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ पोलराइज? पोलराइज मींस व्हेन समथिंग इज सेपरेटेड इनटू टू, व्हेन समथिंग इज सेग्रीगेटेड. तो जब की चीज में फूट पड़ जाए ना, आपको पता है भारत में ये पॉलिटिकल पार्टियों में होता है, जब उन्हें फूट पड़ जाती है, तो पोलराइज वर्ड यहां पे यूज होगा आपका, ठीक है. सेपरेट इन ऑपोजिंग ग्रुप. तो देखिए कहां पे यूज हुआ. देखिए पोलराइज नंदीग्राम अवेट्स टाइटनिंग ममता सुवेंदा क्लेश. तो देखिए वहां पे दो पार्टी, आपको पता है चुनाव आने वाला है, वेस्ट बंगाल चुनाव होने वाला है, तो वहां पे ऐसी चीजें देखने को मिलेगी. तो दो पार्टी और दो गुट में जो है वहां पे वो हो चुका, विभाजन हो चुका है. तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पोलराइज. तो आपको याद कर लेना. पोलराइज का मतलब क्या होता है? दो चीज सेपरेट हो जाए, फुट डलना, या दो चीज सेग्रीगेट हो जाए, तो वहां पे हम पोलराइज वर्ड यूज करते हैं. उम्मीद है आपको ये वर्ड जो है क्लियर हो चुका होगा. चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं. ये बहुत ही एक आसान सा वर्ड है, कंडेम. इट्स अ वर्ब. तो कंडेम का मतलब होता है जब किसी की निंदा करते हो, जब किसी को बुरा बनाते हो, बुरा भला कहते हो या अपराधी ठहराते हो, तो यू से कंडेम. सो व्हाट बेसिकली कंडेम मीन? व्हेन यू एक्सप्रेस द डिसअप्रूवल समथिंग स्पेशली इन पब्लिक, सो यू यूज द वर्ड कंडेम. मींस टू सेंसर, टू क्रिटिसाइज, टू डिनाउंस, टू रिवाइल, टू ब्लेम, टू कास्टाइज, टू berate, to reprimand, to rebuke someone. So all those are synonymous word, and this word is asked a couple of times in SSC and banking and
NDS CDS examination, you can check the previous year paper and there you will see this word. And this word is very common. This is a favorite word of every journalist because this word often daily I will see in newspaper. It's a better to risk saving a guilt man than to condemn an innocent one. Okay? So you can see how I have used the word in the sentence. Okay dear, hope this word is clear to you. So now where the word is used, TMC condemns Goli Maro slogan by its supporters. So TMC Trinamool Congress condemns, मतलब वो क्या की उन्होंने निंदा की, आलोचना की, किसकी? गोली मारो स्लोगन किसी ने बोला होगा किसी सपोर्टर ने बीजेपी की, तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं. तो कंडेम का मतलब वो क्लियर हो चुका होगा. व्हेन यू हैव ए कंप्लीट डिसअप्रूवल फॉर समथिंग स्पेशली इन पब्लिक. ओके, सो रिमेंबर द लाइंस व्हिच आई से, द एक्सप्लेनेशन व्हिच आई गिव, बिकॉज इन इंग्लिश द वर्ड हैव अ सेम मीनिंग बट द वर्ड आर नॉट सिमिलर. ओके, दे हैव द सेम मीनिंग बट दे डोंट हैव, दे आर सिमिलर बट दे डोंट हैव द सेम मीनिंग. ओके, तो मिलते जुलते हो सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि आप उसको रिप्लेस कर दो. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप हर वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते सिनोनिमस वर्ड से. मीनिंग जरूर सिमिलर हो सकता है एक जैसे, पर आप दोनों वर्ड सेम नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है. चलिए आगे चलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड. ओके, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड व्हिच वी विल ऑफन फाइंड. अकॉर्ड, कंसेंसस. कंसेंसस इज अ वर्ड CONSENSUS. सो व्हाट इज बेसिकली कंसेंसस? कंसेंसस का मतलब होता है जब सहमति होना. ठीक है, तो अकॉर्ड का मतलब भी होता है सहमति होना, जब दो पार्टी के बीच में सहमति हो जाए, दो कंट्री के बीच में. देखिए, व्हेन अ पैक्ट, अकॉर्ड मींस समथिंग एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी. सो व्हाट द सिनोनिमस वर्ड? पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, सेटलमेंट, डील. सो ऑल दिस आर सिनोनिमस वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर अकॉर्ड. मंथ आफ्टर हिज विजिट इन 1996 पीस अकॉर्ड वेयर साइंड. मतलब पीस अकॉर्ड मतलब ट्रीटी साइन की गई. तो देखिए वर्ड कहां पे यूज हुआ, देखिए, इंडिया सिंगापुर साइंस अकॉर्ड ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट. रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना किसी को. ठीक है, बचाना. तो इंडिया और सिंगापुर ने क्या किया, एक सहमति, एक ट्रीटी की है, तो वहां पे वर्ड यूज हुआ अकॉर्ड. ठीक है, एक कंसेंसस वर्ड भी यूज होता है. उसका मतलब होता है क्या, कि जब सहमत हो जाए लोग तो उसे हम कंसेंसस कहते हैं. एक मत से किसी भी चीज को पास कर दे तो वहां पे कंसेंसस यूज होता है. ठीक है, एक वर्ड होता है यूनानिमस. यूनानिमस का मतलब भी होता है एक मत से किसी चीज को पास कर देना. ठीक है, कि जब लोग जो है किसी कोई जो पार्टी के मेंबर्स है तब एक मत के साथ किसी चीज को पास कर देते हैं. व्हेन दे आर यूनाइटेड इन देयर ओपिनियन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, सो दे pass that thing. Okay, so let's move to the next word. The next word is a very beautiful word. It's a betray. Betray means when you are disloyal or when you reveal the secret. जब आप किसी के साथ जो है ना गद्दारी करो या आप किसी को धोखा दो, उसके लिए जब आप किसी का विश्वासघात करते हो, you use the word betray. Betray is a verb, so to be when you are disloyal to someone or when you break the trust of someone who trusts you a lot, so you use the word betray. Okay, what the synonymous word? Be disloyal to, be unfaithful to, rat, and all these are phrases now. Think on, sell down the river is a phrase. Okay, so all these are words which are synonymous word and phrases which are used for betray. So what are the uses? He betrayed the company when he sold its secret to a competitor. So when you will send the secrets of a company to its competitor, जब आप उसके जो है आपके कंपटीटर्स को ही उसके सीक्रेट्स भेज दोगे तो वो क्या, उसने कंपनी हो गया बिट्रे, मतलब उसने कंपनी को धोखा दिया, कंपनी का विश्वासघात किया. नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नेवर बिट्रे माय फ्रेंड. तो मैं कुछ भी हो जाए चाहे मैं अपने फ्रेंड को क्या नहीं, विश्वासघात नहीं करूंगा, उसको धोखा नहीं दूंगा. तो ये वर्ड कहां पे यूज हुआ, देखिए, अमृता बिट्रे हिज पॉलिटिकल लीनिंग. तो उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्या किया, धोखा दिया, छोड़ दिया होगा, कुछ भी किया होगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो वर्ड याद करना है. हमने वर्ड याद कर लिया, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है वेट अ मिनट. I think you people are enjoying the session. So if you like my session, please don't forget to follow our YouTube channel and even share with your friend, because of the what I'm providing you, I can tell and no teacher is giving this quality. Okay, because all this is not so simple. Okay, I have to collect the words which are relevant for your examination. I am not here for marketing, that I will just give you 10 words and at below I will write okay, please use my coupon code to get a 10% subscription, or I will not use here a banner that we are launching a live batch. There's nothing like that. All these are just to help the
aspirants so that they can prepare for the examination. And if we will have some viewers, the Google is going to pay us for that, YouTube is going to pay us for that, if we are going to do something good for the students, for the aspirant. Okay, and if something is paid, so we are, because we are not teacher, we are aspirant, so we are not teacher, basically we are aspire for competitive exams. I am a mentor for IELTS, so I used to train the students for English proficiency test, IELTS, if you have the knowledge. And I am also a competitive aspirant, so I have the knowledge, I have the experience, the which word are asked in different competitive exams. So that's why I am able to design this session. I am teaching you people. So reinvigorate, what's the meaning of reinvigorate? Means to reanimate something, कि चीज को फिर से जीवित कर देना, किसी में जान डाल देना, उसे हम क्या बोलते हैं? रीइनविगोरेट, फिर से ताजा करना, पूर्ण जीवित करना. तो वर्ड कहां पे यूज हुआ अभी आपको बताऊंगा, तो देख लीजिए इसका सिनोनिमस वर्ड क्या है. रीएनिमेट, एनलिवन अगेन, री-एनर्जाइज एंड रिफ्रेश समथिंग, इट्स नोन एज रीइनविगोरेट. तो री इज अ रूट वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? वापसी, वापसी किसी चीज को जो है जीवित करना. रिटर्न मतलब वापस आना. ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो. तो देखिए, बजट मस्ट रीइनविगोरेट डिमांड. रीइनविगोरेट मतलब फिर से जो है डिमांड को ताजा या फिर से रिफ्रेश कर. आपको पता है इस समय क्या है, हमारी मार्केट पूरी तरीके से जो है ना, इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो चुकी है. हमारी इकोनॉमी जो है पूरी स्लो होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम ये जो है हमारी जो, यार वो वर्ड कौन सा था अभी दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड, स्टैगफ्लेशन. हाँ, तो स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन हमारी इकोनॉमी में बनी हुई है, ना तो डिमांड है ना एम्प्लॉयमेंट है. तो दोनों ही स्थिति में, जिसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी पूरी नीचे जाती जा रही है, जीडीपी गिरती जा रही है. तो रीइनविगोरेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बजट है, जो वो डिमांड को, बजट ऐसा होना चाहिए कि डिमांड क्या जाए, फिर से जीवित हो जाए. मतलब लोग चीजों को खरीदे, लोग चीजों को चेस करें, जिससे क्या है कि मार्केट में डिमांड बढ़े. डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो कौन बढ़ाएगा? तो प्रोडक्शन करने वाले एम्प्लॉयज. तो जब एम्प्लॉयज की हायरिंग होगी तो उनको सैलरी मिलेगी, जब उनको पैसा मिलेगा तो वो चीज की डिमांड कर देंगे, और अगर वो डिमांड कर देंगे, उनको पैसा मिलता है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो चीजों खरीदेंगे, चीजों खरीदेंगे तो फिर चीजें बनानी पड़ेगी. तो ऐसे भैया पूरा का पूरा सर्कल चलता रहता है. आप पूछोगे सर आपको इकोनॉमिक्स कैसे आते हैं? आई एम बीकॉम ग्रेजुएट, सो आई कैन इवन टीच इकोनॉमिक्स आल्सो. इफ यू विल इंटरेस्टेड, कमेंट बिलो, आई विल आल्सो ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग सेशन फॉर इकोनॉमिक्स. ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सचेकर. इट्स अ नाउन. एक्सचेकर का मतलब क्या होता है? एक्सचेकर मींस द नेशनल फंड और द नेशनल पब्लिक मनी. जैसे सरकार का खजाना होता है, उसे हम एक्सचेकर बोलते हैं, या राजकोष, ये को हम क्या कहते हैं? एक्सचेकर कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी बार अभी बजट आने वाला, तो ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो वर्ड द सिनोनिमस वर्ड ट्रेजरी, इसका एक ही सिनोनिमस वर्ड है. आपके ज्यादा हर वर्ड का जरूरी नहीं है कि सिनोनिमस वर्ड आपको मिले ही मिले, तो ऐसा जरूरी नहीं होता. ठीक है, तो देखिए कहां पे यूज हुआ. स्टेट रोल्स बैक 50% लाइसेंस वी एक्सचेकर सफर्स. कहां गया अभी पॉइंटर? हाँ, स्टेट रोल बैक्स मतलब वापस किया, 50% लाइसेंस फी वापस की. एक्सचेकर सफर्स लॉसेस मतलब जो सरकार का खजाना है उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ. तो एक्सचेकर का मतलब पता था आपको, तो हेडलाइन आपको क्लियर हो जाएगी. तो खजाना मैंने आपको बता दिया. चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज पॉइज्ड. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉइज्ड? व्हेन यू ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन समथिंग, सो यू यूज द वर्ड पॉइज्ड. इट्स बेसिकली अ वर्ब, मींस एन एक्शन वर्ड. जब आप किसी चीज को संतुलित करते हो या संतुलित रखने की कोशिश करते हो, यू यूज द वर्ड पॉइज्ड. सो व्हाट द सिनोनिमस वर्ड? स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. when there is a equilibrium between two things ना, it is also an economic term. ठीक है, तो equilibrium एक टर्म होती है, तो आपको इकोनॉमिक के सेशन में बताऊंगा. अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए सेशन बना दूंगा. he poised motionless on his toy. ठीक है, तो वो अपने जो है टॉय पे क्या है? मोशनलेस, मतलब संतुलित बनाकर ऐसे खड़ा रहा. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इकोनॉमी पॉइज्ड बाय ग्लोरियस समर आरबीआई. तो आरबीआई ने क्या कहा है कि इकोनॉमी जो है ना हमारे समर सीजन में क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी, ऐसा आरबीआई ने कहा है. तो देखिए आप किस तरीके से ये वर्ड यूज हुआ है. द नेक्स्ट वर्ड इज अ वेरी कॉमन वर्ड, रिपील. काफी बार कुछ एग्जाम में पूछा भी गया. तो व्हाट द मीनिंग ऑफ repeal? Repeal means when you revoke or when you make a law when you annul a law, मतलब जब आप किसी लॉ को समाप्त कर देते हो, तो जब आप किसी को रद्द कर देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपील बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट्स द सिनोनिमस वर्ड फॉर इट? ये बेसिकली लॉ के लिए ही या किसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जब when the government try to cancel it, so you use the word repeal. Okay, it's an appropriate word, repeal. So what is the synonymous word? Revoke, rescind, cancel, reverse, annul and nullify. All these are synonymous word which is used for repeal. The legislation was repealed 5 months later. तो वो legislation जो बनाया गया था वो 5 महीने बाद
क्या है, रद्द कर दिया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, इट्स अबेयंस। अबेयंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज नोट इट डाउन। इट्स अ नाउन। अबेयंस का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अबेयंस? बेसिकली व्हेन समथिंग इज डिलेड, ओके, व्हेन समथिंग स्लोज डाउन और व्हेन समथिंग इज पुट ऑफ टिल अ लेटर डेट, सो यू यूज द वर्ड अबेयंस, मतलब ठहराव या निलंबित करना किसी भी चीज को। व्हेन यू एजेंट समथिंग, सो यूज द वर्ड अबेयंस। मींस लेट मी टेल यू सम फ्रेजेस फॉर इट। अप इन द एयर, टू पुट समथिंग इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब ठंडे बस्ती में डालना। टू पुट समथिंग ऑन आइस, सो ऑल दिस आर phrases which is used for abeyance. So you can remember this word. It's a very important word. You have to keep it in mind because it is used several times in the newspaper. So what the synonymous word? It is not written. You can write, note it down. Suspended, deferred, postponed, or put off something. When you, so all these are synonymous word because there is Oxford dictionary in my mind. I remember lots of word because daily I used to read 5 to 6 newspaper, and today I am fluent in English language. Let's see where it is used. So you can see how the screen is rolling. Pause or repeal, government may have to go back to Supreme Court or Parliament. Repeal means या तो कानून को रद्द कर दो, तो वो क्या कह रहे हैं, कल हमारे पार्लियामेंट ने क्या डिसीजन दिया कि आप वी कैन होल्ड द लॉ फॉर 18 मंथ, मतलब 1.5 साल तक हम उसको क्या कर सकते हैं। तो यू कैन सी द वर्ड एज फार्मर रिजेक्ट द गवर्नमेंट प्रपोजल टू कीप द 3 कंटेंशियस, मतलब विवादित, कोई भी मुद्दा विवादित हो ना, एक नया वर्ड और मिल गया, कंटेंशियस फार्म लॉ इन अबेयंस फॉर 18 मंथ, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, होल्ड पर रख सकते हैं, डिले कर सकते हैं फॉर 18 मंथ। पर किसान क्या कह रहे हैं, व्हाइल पार्लियामेंट कैन रिपील द लॉ, देयर इज नो वोकैबुलरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉर कीपिंग अ लॉ इन अबेयंस। मतलब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट या तो कानून को रद्द कर सकती है, हमारे संविधान में कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि कानून को आप जो है निलंबित करो या उसको जो है आप उसको डिले कर दो, आप उसको होल्ड पे रख दो, ऐसा कोई भी नियम है नहीं। तो ये यहां पे कहने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए लाइक पे दबा दीजिए भैया, वीडियो अगर मजा आ रहा है तो लाइक दबाइए, सेशन को शेयर कीजिए, मुझे ही मजा आएगा। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज इलिसिट। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलिसिट? बेसिकली इलिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज गैर कानूनी। क्या मैंने बोला? गैर कानूनी। व्हेन समथिंग इज नॉट अलाउड बाय, व्हेन समथिंग इज इलीगल, व्हेन समथिंग इज नॉट अलाउड बाय द law, basically we use the word illicit. So what's the synonymous word for it? Illegal, unlawful, illegitimate, forbidden, prohibited and proscribed। एक वर्ड होता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब है किसी को कोई चीज जो है देना, जैसे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, आपको बताता है कि आपको ये मेडिसिन लेती है। एक होता है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, टू फॉरबिड, मतलब प्रतिबंध लगाना किसी भी चीज पे। तो इलिसिट का मतलब भी क्या होता है, समथिंग दैट इज अगेंस्ट द रूल, समथिंग दैट इज इलीगल, समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉस ऑफ कंट्री, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द इलिसिट ट्रेड ऑफ अ ड्रग पेडलर, द इलिसिट ड्रग्स। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को। तो आप देखिए मैंने कैसे इसको यूज किया है, समथिंग दैट इज फॉरबिडन। ऑल दिस सिनोनिमस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड यू कैन सी दिस वर्ड डेली इन न्यूज़पेपर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सो फर्स्ट सी वेयर दिस वर्ड इज यूज्ड। एसपी फ्लैग्स इलिसिट लिकर ट्रेड एट ऑल। इलिसिट मतलब अवैध जो है लिकर का ट्रेड चला था। एसपी ने क्या किया, फ्लैग मतलब उन्होंने बताया। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्यों चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सैकिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सैकिंग? अब देखिए एक है ना सैक होता है, सैक हम बोलते हैं बोरे को, जो बोरा होता है ना जिसमें चीनी वनी आती है, उसको कट्टे को हम बोलते हैं सैक, ठीक है। अब सैकिंग का मतलब क्या होता है? सैकिंग का मतलब होता है किसी को बर्खास्त करना, ओके। When somebody is terminated or somebody is dismissed from the job or employment, use the word sacking, okay? So please remember this word, it's very important. जब लॉकडाउन में लोगों की नौकरी गई थी, काफी बार यूज हुआ था। The Zomato sacked the employees, the delivery boys. So in this way this word is used. Synonymous: fire, dismiss, discharge, lay off, let go, terminate. So all these are words which is used for employment. Let's check some phrases related with when you miss the job. Give someone the boot, show someone the door, sand packing, very important, action, CGL, pink slip. So all these are phrases which is used for जब आप किसी को बर्खास्त करते हो, जॉब से निकालते हो। The sacking of 23,000 Zomato delivery boys. So you can see how I have used the word sacking. Okay, now where the word is used, you have to look that. भंडारा blaze, कहीं पे आग लग गई, ठीक है। Finally suspension and sacking मतलब निकाला जा रहा है आग लगने के कारण, तो उनकी लापरवाही की वजह, because of their negligent there was a blaze in महाराष्ट्र. So now what is suspension? या तो किसी को सस्पेंड किया जा रहा है या बर्खास्त किया जा रहा है नौकरी से। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज diligent. What is basically diligent means? Okay, diligent means someone who is very hard, who is industrious, who works very hard. जो बहुत क्या है, मेहनती जो लोग होते हैं, जैसे परिश्रमी, जो लोग मेहनती होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, diligent. So how you can remember this word? The mnemonics is there. दिल्ली के एजेंट. So diligent sounds like दिल्ली एजेंट. तो दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो somebody who is industrious, इंडस्ट्री से याद कर लीजिए, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियस मतलब
मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। एसिडुअस, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस वर्ड, एसिडुआदो, क्या दो, एसिडुआदो के हम क्या बन जाए, मेहनती बन जाए। मेटिकुलस, मेटिकुलस को भी याद कर लीजिए, माटी के कलश, माटी के कलश, मेटिकुलस मींस माटी के कलश बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी करती है। पेनस्टेकिंग, आपको अगर आप अगर मेहनत करोगे तो क्या आपको दर्द होता है ना, कोई भी आप मेहनत करते हो, ठीक है ना, आप कुछ भी चीज के लिए जो है ना संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, तो पेनस्टेकिंग, सारे के सारे मैंने आपको कीवर्ड बता दिए कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ट्रिक के थ्रू वर्ड को याद कैसे करना, हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल दिस वर्ड। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड several times you will see this word in SSC. It is asked couple of times in different exams like CDS, NDA, so it's a very important word for you. Many caves are located only after diligent search, मतलब बहुत सारी जो गुफाओं को जो है तभी पाया गया कि क्या है, बहुत ही मेहनत से जो है उसको ढूंढा गया, ठीक है। ए डिलीजेंट स्टूडेंट, तो जो बच्चे बहुत मेहनती होते हैं उसे हम डिलीजेंट बोलते हैं। स्टूडियस भी बोलते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते हैं उनको स्टूडियस भी बोला जाता है, STUDIOUS। let's move to the next slide. Let's see where the word is used. Law helps only the diligent. हाई कोर्ट टेल्स एक्टर सोनू सूद, तो ये देखिए लॉ, क्या कहा हाई कोर्ट ने कि लॉ सिर्फ मेहनती लोगों का साथ देती है, उन्हीं के साथ है, तो हेल्प्स ओनली द डिलिजेंट, जो लोग मेहनत करते हैं, तो सोनू सूद जी को ऐसा कहा गया, ठीक है। तो देखिए डिसमिसेस प्ली, प्ली का मतलब होता है अर्जी, ठीक है, किसी को अपील करना। टू क्वैश, क्वैश का मतलब होता है रद्द करना। डिमोलिशन नोटिस, डिमोलिशन का मतलब किसी चीज को बर्खास्त, जैसे बिल्डिंग को तोड़ वोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, तो शायद को नोटिस वोटिस इन्होंने भेजा होगा, मैंने ये न्यूज तो देखो पढ़ी नहीं है, आपको मैं सच बता दूं, डिमोलिशन का मतलब when you demolish something means you destroy something, okay, so when you are destroying something, so the demolition word is used, basically it is used for building, जब बिल्डिंग को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं डिमोलिश किया जाता है, धराशायी करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्लोज टेस्ट में काफी बार इस तरह की कंफ्यूजन दी जाती है आपको। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्रंट। सो व्हेन यू कन्फ्रंट समथिंग मींस यू आर फेसिंग समथिंग, ओके, व्हेन यू कन्फ्रंट समथिंग मींस यू आर फेसिंग समथिंग, मतलब आपकी चीज का सामना कर रहे हो, तो व्हेन यू चैलेंज समथिंग, व्हेन यू फेस समथिंग, सो इट इज नोन एज कन्फ्रंट। आई एम कन्फ्रंटेड विद मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, मतलब मैं अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहा हूं। He was confronted with the evidence of his crime, so see how I've used the word. Let's move to the next word. So first see where the word is used. Police team confront outside राबड़ी हाउस, तो पुलिस जो है उसके सामने खड़ी हुई है, किसके घर में, राबड़ी देवी के घर के बाहर। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया? कोई आपकी पुरानी घटना जो आपको याद है भूतकाल की, जो आप चाहते हो कि ऐसा जो है समय वापस आ जाए, जो आपको बहुत, आप चाहते हो कि मेरा बचपना जो है वापस आ जाए, जो बचपन में चीजें आपको बहुत याद आ रही है, ठीक है, किसी भी कोई पुरानी कोई चीज के बारे में, कोई पुरानी घटना के बारे में, तो सब नॉस्टैल्जिया कहते हैं इंग्लिश में। तो नाउन, बहुत सारे लोग इसको फेसबुक में कैप्शन वगैरह की तरह यूज करते हैं, तो ये नाउन है, ध्यान रखिएगा। रेमिनिसेंस, रिमेम्बरेंस, रिकलेक्शन एंड विस्टफुलनेस आर द सिनोनिम्स वर्ड। सी फेल्ट अ ग्रेट नॉस्टैल्जिया ऑफ फॉर हर चाइल्डहुड, तो उसको अपने चाइल्डहुड की याद आ रही है, तो सी फेल्ट अ ग्रेट नॉस्टैल्जिया फॉर हर चाइल्डहुड, सो यू कैन यूज द वर्ड इन दिस वे। लेट्स मूव टू द स्लाइड वेयर दिस वर्ड इज यूज्ड। नेताजी नॉस्टैल्जिया डीप फ्राइड, सो सी नेताजी को आपको पता है शायद इनका जन्मदिन है, मुझे याद नहीं है, मैंने आज यूज नहीं पढ़ी, तो हाँ नेताजी का बर्थडे है, तो उस कारण से क्या है लोग उनको याद करें, तो नॉस्टैल्जिया। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विथहोल्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विथहोल्ड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ विथहोल्ड? Withhold means when you refuse to give something, when you refuse to give something, the word is used withhold. It's a verb basically, किसको रोकना या किसी को थामना, ठीक है। To hold back, to keep back, to refuse to give, to restrain something, तो we will use the word withhold. To withhold permission मतलब परमिशन ना देना, तो वर्ड कहाँ यूज हुआ तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट withholds 214 crore for वाद्रा यवतमल नांदेड़ रेल रूट, तो क्या किया स्टेट गवर्नमेंट, विथहोल्ड मतलब रोक दिया है, कितना 214 करोड़ पे, तो विथहोल्ड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ। आपको अगर इसका मीनिंग नहीं पता, पूरी हेडलाइन को ही जो है कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। अब जो आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं ना, व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हेन यू ए फ्रेज इज यूज्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब जो आप किसी चीज को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप क्या बोलते हैं, उसके लिए फ्रेज यूज होता है कि चीज को समझने की जब बोलते हैं, तो रीड बिटवीन द लाइंस मतलब कि चीज को गहराई से समझना। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रॉबस्ट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रॉबस्ट? रॉबस्ट मींस समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रांग, समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी, समथिंग दैट इज वेरी विगोरस, तो मजबूत या तगड़ा कोई भी चीज हम क्या बोलते हैं, रॉबस्ट। तो देखिए विगोरस, स्टडी, ब्राउनी, पावरफुल, सो ऑल दिस आर सिनोनिम्स वर्ड फॉर रॉबस्ट। रॉबस्ट लॉ मतलब बहुत ही मजबूत या बहुत ही जो है आप कह सकते हो ठोस कानून, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो देखिए कहां पे यूज हुआ है, रॉबस्ट लॉ फॉर डेटा प्रोटेक्शन, तो आप देख सकते हो हाल ही में रिसेंटली व्हाट्सएप हैज ब्रिंग सम प्राइवेसी पॉलिसी इश्यूज एंड नाउ ऑल द
now what is it has deferred the decision to bring the update. Why? Because all the people, there was a mass exodus कल मैंने बताया था, when there is a mass departure means when lots of people are leaving a place, means lots of people are leaving the WhatsApp and they are moving towards Signal and Telegram. So the word is used exodus. Where it was used, exodus, it was used in lockdown where lots of migrants, they were returning back to their home. So at that time this word was used. What I said, the word exodus. Okay, so ये WhatsApp से जुड़ा है, प्राइवेसी से जुड़ा है, तो यू नो प्राइवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट, सो इट इज upheld by Supreme Court in 2017. So you must also have the knowledge of polity if you are preparing for competitive exams. It's a very, I can also teach the subject. If you are interested, just comment below, sir, we want this, we want that. I will bring each and everything for you free of cost. Let's see. The next word is besieged. Besieged का मतलब होता है घेर लेना किसी भी चीज को, तो when something is surrounded by something. For example, lay siege to beleaguer, blockade or surrounded. For example, the reported besieged me with questions about the plane crash. तो मतलब रिपोर्टर ने क्या किया, उसको besiege means उसको घेर लिया किस चीज से, कि प्लेन क्रेश के क्वेश्चंस जो रिपोर्टर देखते हैं ना पूरा घेर लेते हैं किसी भी अभिनेत्री को, तो वर्ड इज यूज्ड besieged. तो यहाँ पे व्हाट्सएप के साथ ये वर्ड हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज हुआ ये besieged. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको पूरी तरह से घेर लिया व्हाट्सएप को कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, सब अपने जो विशेषज्ञ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे, तो पूरी तरह से घेर रखा उसको सबने. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है बर्सक. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बर्सक? बर्सक इज ए नाउन बेसिकली जब लोग जो है ना पूरा जो है भीड़ क्रोधित हो जाए. ठीक है, क्रोधित हो जाए, वो इधर उधर भागे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं बर्सक. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. व्हेन अ पर्सन और व्हेन अ पर्सन इज आउट ऑफ कंट्रोल इन एंगर, सो यू यूज द वर्ड बर्सक, मींस फ्रेंजिड, इंसेंट, एंग्रेज्ड, रेजिंग एंड अनकंट्रोलेबल. आफ्टर शी लेफ्ट हिम ही वेंट बर्सक, मतलब वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया, he got out of control. So now see, when this word is used, this is the last word of the session, encroachment. encroachment का मतलब होता है किसी चीज में आक्रमण करना, अतिक्रमण करना, या किसी चीज पे कब्जा कर लेना, उससे हम क्या बोलते हैं, encroachment. ठीक है, तो कोई आपकी अगर किसी चीज को जो है हड़प लेता है, उससे भी हम क्या कहते हैं, encroachment. तो what the synonymous word, infringement, trespass, intrusion and invasion. The new censorship laws are serious encroachment on freedom of expression. So you can see, मतलब ये आपके जो है freedom of expression पे क्या है, अतिक्रमण या आपके आक्रमण है. एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, आपको उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा. ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज मैं आपके लिए कुछ और वर्ड लेके आया हूं. तो पहले बताता हूं बर्सक और एनक्रोचमेंट कहां पे यूज हुआ. देखिए मॉब गोस, मॉब जो भीड़ होती है, गोस बर्सक मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ड्यूरिंग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव. तो यहाँ पे देखिए तोड़फोड़ का काम चल रहा है, लोग क्या करते हैं, एनक्रोच कर लेते हैं. आप देखते हो ना कि सरकारी कोई सड़क पे जगह है, वहां पे दुकान वुकान लगा ली, कोई ऐसा ना खोखा लगा दिया, तो ऐसे दे यूज्ड टू एनक्रोच द प्लेस, द गवर्नमेंट. तो वहां पे क्या ट्रैफिक का इशू, तो फिर सरकार क्या करती है, व्हाट द पीडब्ल्यूडी डू, दे यूज्ड टू डिमोलिश द बिल्डिंग, दे यूज्ड टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर which are built by which are illegal construction by the owner or by the proprietor. So you can know how the word is used. So now let's move to the last slide of this session, then I will wrap this session. So SSC previous year word, let's see some important words which are asked in SSC and different competitive exams. So you can see abandon. What's the meaning of abandon? Abandon का मतलब होता है when you leave something, when you desert something. Desert have two meaning. Desert का मतलब होता है रेगिस्तान. Okay, राजस्थान है, रेगिस्तान भी होता है. Desert means एक जो मिठाई के साथ डेजर्ट हम खाते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं. जैसे मिठाई हो गया, कुछ भी आइसक्रीम, जो मीठी चीज खाते हैं हम खाने के बाद, एक डेजर्ट होता है किसी को छोड़ना. ठीक है, when you leave someone isolated. So all these are what you must have a clarity in your mind. If you are learning vocabulary, just cramming is not important. You must know the confusing pair. What is the meaning of ADVISC? What is the meaning of ADVICE? Both the words are different. One is a noun, one is a verb. So I will also design sessions for confusing word. What you need to do, just subscribe our YouTube channel, comment below how you like the session. If you like the session, share with your friend, bring more and more subscribers, so that it will encourage us to bring some solid session for you people. Abandon का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, completely किसी चीज को दे देना. Abdicate, abdicate का मतलब होता है त्यागना किसी भी चीज को. जब आप कोई जॉब या कोई पद को त्याग देते हो, तो भाई अब दिक्कत थी तो मैंने क्या किया, त्याग दिया. अब दिक्कत, abdicate sounds like अब दिक्कत, तो जॉब में मुझे अब दिक्कत थी, मैंने क्या किया, त्याग दिया. Relinquish office power, resign, renounce, give up, all these are words for abdicate. Abduct, abduct का मतलब होता है किसी का अपहरण करना. When you kidnap someone, when you carry off someone, especially a person, okay, so you say अपहरण करना, हिंदी में से हम कहते हैं abduct. Abhor, when you hate something, when you dislike something, when you detest something, घृणा करना, उसे हम क्या बोलते हैं, abhor. I abhor English language, I abhor Chinese people. So जब आप उनसे घृणा करते हो. Abolition, abolition का मतलब क्या होता है, it the meaning is consecration, ritual cleansing और washing. जब आप किसी चीज को जैसे स्नान या अभिषेक वगैरह करते हो ना, मंदिर में हाथ पैर धोते हो, वहां पे ये वर्ड यूज होता है
एब्ल्यूशन। एबोलिश मैंने आपको पहले ही करवा दिया, जब किसी भी चीज को समाप्त करते हो या रद्द करने को कैंसिल या रिवोक। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। अब देखो गेट का एग्जाम होता है भारत में, गेट का एग्जाम, तो मैंने बोला अब रो गेट रद्द हो चुका है, गेट का एग्जाम अब तू रो भाई, अब तू रो मतलब अगले साल होगा, गेट का एग्जाम क्या चुका है, रद्द हो चुका है। तो एब्रोगेट मतलब आप कब रोगे, जब गेट का एग्जाम क्या हो जाएगा, एब्रोगेट मतलब रद्द हो जाएगा। ऑफिशियली एनल और एबॉलिश और टर्मिनेट और पुट एन एंड टू समथिंग। ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर डिफरेंट वर्ड्स व्हेन यू कनेक्ट विथ इन योर सबकॉन्शियस माइंड विथ सम funny tricks. How I am teaching you abrogate, diligence, all these are funny tricks in my right conscious mind, so you can also use this word and you can also frame some tricks in different regional language which is easy for you. I have learned lots of words with mnemonics. Okay, so abstain, abstain का मतलब कि चीज से बचना, avoid, refrain from something, तो इसे कहते हैं बचना। absurdity, absurdity means something that ridiculous, जो बहुत ही मतलब बेहुदा कोई चीज हो ना, इलॉजिकल या नॉनसेंस, कोई बेहुदा चीज या मूर्खता या अनर्थता आप कह सकते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी। तो जब आपको सर्दी लग जाए ना तो क्या होगा, जब आपको सर्दी हो जाए तो वो क्या होगा, तो एब्सर्डिटी को आप सर्दी से याद कर सकते हो। सर्दी लगता है तो नाक ऐसे बहने लग जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉनसेंस है। ठीक है, अबाइसमल, अबाइसमल मतलब समथिंग दैट इज वेरी बैड। ओके, समथिंग दैट इज टेरिबल, समथिंग दैट इज एट्रोसियस। टुडे द वेदर इज वेरी अबाइसमल मींस सम वेरी बैड। तो देखो, तो वेरी बैड मतलब अब 22 मील, अब 22 मील साउंड्स लाइक अब 22 मील, 22 मील मतलब समझ पा रहे हो ना, 22 मील चलना क्या है, बहुत ही खराब है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, समथिंग दैट इज वेरी बैड। अब 22 मील चलना इज वेरी बैड मींस समथिंग दैट इज नॉट गुड। टुडे द वेदर इज abysmal. So my name is Ronak Bhargav and this is the end of the session. Thank you all of you for watching this session, and if you like the session, please share and subscribe our YouTube channel so that we will have some more subscriber, and it will encourage us to bring some solid session for you people on regular basis. We are putting such a great effort for you people. My name is Ronak Bhargav. I'm a founder of Bhargav Adda, and if you want daily vocabulary PDF, solid collection of vocabulary, you can follow my website. There you will get the link of my Telegram channel, and you can follow all the PDFs from there. And I will also ask yours Mehboob admin to upload the PDF there also if you if he will publish, so you can also get from yours Mahbub there. If you don't get there, so you can visit my platform Bhargav Adda. There you will get the Telegram link, and from Telegram you can follow my blogs, and there you will get all the PDFs regularly. So what you have to do, you just have to vocab made easy by Ronak Bhargav, you know. So what you have to do, you like my session, you follow my blog, and if you want to reach me, if you want me to add in your group, you can message me on WhatsApp. If you like my content, you can share my session, and you don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you all of you. Bye bye, good night, have a nice day.